مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا 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 ہے ساری عظمت سب رفعت اس نام کے صدقے ہے ساری عظمت سب رفعت اس نام کے صدقے بہت اونچا اڑاتا ہے بہت اونچا اڑاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں ہمارے گھر سجاتا ہے ہمارے گھر سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے جہاں سب راستے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں جہاں سب راستے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا 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 ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ مریم تھینک یو سو مچ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت آپ نے حاصل کی آپ کو بھی رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ہماری طرف سے میری اور دعا کی طرف سے برکتوں والی یہ راتیں اور مہمان ماہ سیام آپ کو بہت مبارک ہو جی ہاں آج
روزہ، اور جیسے کہ جمیل کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو رمضان کی مبارک اور روزے کی، اور خاص طور پر ہم یہ بھی آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صبح سویرے پاکستان کو رمضان کی مناسبت سے ہم نے تھوڑا سا مختلف ترتیب دیا ہے۔ ہم اپنی ہر سیگمنٹ، ہر ڈیلی کا جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا وہ رمضان کی عبادات کی فضیلت، اہمیت، اور رمضان میں ہمیں، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے اندر بہت سی اچھی چیزیں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے سیگمنٹ شامل کریں، اور خاص طور پر سوشلی بھی کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اس مہینے کو ہم انعام سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں عبادات کے ذریعے۔ بالکل، جہاں اس کی عبادات میں اس مہینے میں 70 گنا زیادہ ثواب ہے، وہیں نیکیوں کا بھی بے حساب انعام ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ نیکیاں آپ کے ساتھ مل کر یہ سمیٹیں، اور کوشش کریں گے کہ آپ بھی لائیو کالز کے ذریعے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کچھ بھی کہنا چاہیں تو فون اٹھائیے، ملائیے اور ہمارے سے بات کیجئے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے، جو آج کا شو ہے، اس میں ہم روزے میں عبادات، احترام، اہتمام، آداب، روزہ اور بیماری، روزہ اور صحت، اس میں احتیاطیں، یہ ساری چیزیں آج ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہم نے ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ صبر برداشت جتنے بھی ہم کہیں وہ کم ہیں الفاظ، اور دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے ہر مسلمان کے پاس کہ وہ اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں جنہیں ہماری اگر آواز ہمارے اس پلیٹ فارم سے ان کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ڈیفینیٹ ہم ضرور کریں گے، اور اپیل بھی کریں گے۔ بالکل، یہ کوشش بھی ضرور کریں گے ہم۔ ابھی سب سے پہلے ہم سہیل بھٹی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ دو اہم سٹوریز ہیں جو ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ بھٹی صاحب السلام علیکم، آپ کو بہت بہت رمضان مبارک۔ کیسے ہیں آپ اور کیا خبریں ہیں آج کی؟ ویلکم، السلام شکریہ صاحب، بہت شکریہ آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی خیر اور برکت والا مہینہ رمضان مبارک ہو۔ سٹوری ہماری ہے وزارت قومی صحت سے متعلق، جب ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ملک بھر کی عوام کی مشکلات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، اس معاملے کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا اور وزارت قومی صحت کو یہ ہدایت کی گئی کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی کروانے کے لیے نہ صرف اقدامات کیے جائیں بلکہ شعبہ صحت کے اندر مزید بہتری لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ کابینہ میں ارکان میں تبدیلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وزارت صحت کا جو ذمہ داری تھی وہ وزیر اعظم نے WHO میں اس وقت کے تعینات اور شعبہ صحت کے اندر تجربے کے حامل ڈاکٹر ظفر مرزا کے سپرد کی، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کہ ادویات کی قیمتوں میں جو گزشتہ سال اضافہ ہوا، رواں سال اضافہ ہوا، ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کو قائل کر کے قیمتیں کم کروائی جائیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ مارکیٹ کے اندر ادویات کی قلت پیدا ہو جائے بلکہ قیمت بھی کم ہو جائے اور ادویات کی سپلائی بھی متاثر نہ ہو۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا، اس اجلاس میں وزارت قومی صحت کی جانب سے بھی ایک سمری پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس سمری کے اندر دو بڑے سٹیپس لیے گئے جو کہ عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ ادویہ ساز کمپنیاں جنہوں نے دسمبر 2018 میں ادویات کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ کیا تھا، ان کمپنیوں کو 125% قیمت میں کمی کا واپس لینے پر قائل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو جنوری 2019 میں ادویات کی قیمتوں میں 9% اضافہ کیا گیا تھا، یہ اضافہ مکمل طور پر واپس لینے پر قائل کر لیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ سے یہ ساری صورتحال آج شیئر کی جائے گی، اور وفاقی کابینہ سے ان ادویات کی قیمتوں میں کمی کے لیے SRO 1610 اور SRO 34 میں ترمیم کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ اس اقدام کے نتیجے میں مجموعی طور کے اوپر عوام کو 7 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ یہ ایک پیش رفت ہوئی ادویات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق۔ دوسرا ایک بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے وزارت قومی صحت کی جانب سے، مختلف اضلاع کے اندر صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے جو پسماندہ اضلاع ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے۔ پہلے مرحلے کے اندر وزارت قومی صحت نے اسلامی ترقیاتی بینک کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا اور اسلامی ترقیاتی بینک کے مابین تمام معاہدوں کے اوپر معاملات طے پا چکے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے پا چکی ہیں، جس کے تحت ابتدائی طور کے اوپر سندھ اور خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں مجموعی طور کے اوپر 15 موبائل ہیلتھ کلینک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے جو اضلاع اس میں شامل ہیں، اس میں میرپور
خاص، عمرکوٹ، تھر پارکر، بدین، ٹھٹھا اور سجاول شامل ہے۔ اور اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس میں کوہستان، شانگلہ، کوہاٹ، لکی مروت، ڈھیائی خان، کرم، محمد اور اورگزئی ایجنسی شامل ہیں۔ اس اقدام کے نتیجے میں جو یہ مختلف ہیلتھ کلینکس قائم کیے جائیں گے، یہ پسماندہ ترین علاقوں میں ہوں گے۔ 8 گھنٹے ڈیلی یہاں پر عوام کو صحت کی سہولیات میسر ہو سکیں گی، اور قومی اور صوبائی سطح کے اوپر جو صحت سے متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کی مانیٹرنگ کریں گے، ان کے تعاون سے ان کو چلایا جائے گا۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے رورل سطح کے اوپر عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق، لیکن بڑا معاملہ جو ادویات کی قیمتوں سے متعلق تھا اس میں ایک پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن مستقبل کے حوالے سے بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو عالمی سطح کے اوپر شعبہ صحت کے اندر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ایسا موقع کمپنیوں کو نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بلا جواز ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا، ان کی انپٹ کاسٹ میں اضافہ ہوا، ایک معقول جو ان کا ریزنیبل مارجن بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے، لیکن جس قدر سے یہاں پر اضافہ کیا گیا، مستقبل کے اندر ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے بھی روک تھام کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے پراپر کوئی میکنزم یا پالیسی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے، بہت سے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جاتا ہے، بہت سے منصوبے شروع کر دیے جاتے ہیں، لیکن آگے ان کا چیک ان بیلنس اور پھر وہ واقعی جس مقصد کے تحت ان منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے وہاں تک ان کے فوائد پہنچ رہے ہیں یا نہیں، اب اس کو انشور کرنا وزیر صاحب کی ذمہ داری ہوگی۔ بھٹی صاحب، نیکسٹ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ دوسرا ہماری جو خبر ہے وہ ایک اچھی خبر ہے ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ جوانوں کے لیے، جن کی عمر 21 سے 45 سال کے درمیان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار نوکریوں کے لاکھوں نوکریاں فراہم کرنے کا بھی اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن ملکی جو کمزور معاشی صورتحال تھی، بہت سے مشکلات عوام کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ وزارت خزانہ نے ایک سمری تیار کی ہے جس بات کا جو کہ آج وفاقی کابینہ کی جانب سے جس کو منظوری ملنے کا امکان ہے، یہ ایک وزیراعظم کا کامیاب جوان پروگرام تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت ملک بھر کے جوانوں کو جن کی عمر 21 سے 45 سال ہے انہیں 5 سالوں کے دوران 200 ارب روپے کا قرضہ بلا سود فراہم کیا جائے گا۔ پروگرام کی جو اچھی بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی آسان قرضہ اسکیمیں شروع کی گئی، لیکن اس قرضے کا حصول نوجوانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا تھا، جو اس کے اندر ضمانت طلب کی جاتی تھی، جو اس کے اندر گارنٹی طلب کی جاتی تھی اور دیگر شرائط و ضوابط تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو چھوٹے اسکیل کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، ان کو مشکل کا صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس قرضے کے حصول کے لیے 3 ٹیئر متعارف کروائے گئے ہیں۔ پہلا ٹیئر جس کے اندر 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا، اور اس کے لیے کسی آپ کو گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی سرکاری افسر کی ضمانت کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ جو شخص یہ قرض حاصل کر رہا ہوگا اس کی ذاتی ضمانت کے اوپر یہ اس کو قرض دیا جا سکے گا، جو ایک آسان بنائی گئی ہے اس شرط کو۔ دوسرے درجے کے اندر 5 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک قرض دیا جائے گا، اور تیسرے درجے میں 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک قرض دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھے مواقع ہوں گے وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فنڈز کی قلت ہے، سرمایہ نہیں ہے، وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہیں اس بلا سود قرض کے ذریعے سے۔ اور یہ دوسرے اور تیسرے درجے کا قرض ہے، یہ بینک اور نجی بینک فراہم کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس کی رضامندی حاصل کی جا چکی ہے، اور نجی بینک اپنی شرائط کے مطابق جو انہیں سیکیورٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگوں کو ان شرائط کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو 5 سالوں کے دوران 200 روپے کا یہ قرض ملے گا بلا سود، وفاقی حکومت کی جانب سے نجی بینکوں کو 24 ارب روپے جو مارک اپ کی مد میں بطور سبسڈی ادا کی جائے گی، تاکہ یہ اس قرض کے اوپر سود، یہ مارک اپ کا بوجھ قرض حاصل کرنے والے افراد پر نہ پڑے۔ یہ اچھا اقدام ہے، دیکھنا ہوگا کب سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن آج امکان ہے اس بات کا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کی منظوری حاصل کر لی جائے گی۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور آپ فائدے کی بات کر رہے تھے، ذرا موسم کی بات کر رہے تھے، کیونکہ موسم گرم ہو، اگر تھوڑا سا چینج آ رہا ہو تو اس میں بھی بڑے فائدے نقصان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم لاہور کا ذکر کریں گے۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 23 ہے اور زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور جناب کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔
अब बारी है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और जनाब पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और अब आपको अपडेट करेंगे क्वेटा का दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके जनाब, ख़बरों के बाद ज़रा हम बात करते हैं थोड़ी मरियम मुनीर साहिबा से। थैंक यू सो मच मरियम। और ये शर्फ हासिल करना और ख़ास तौर पर जब लाखों लोग आपको सुन रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हाउ डू यू फील, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ के, और ये मेरे माँ बाप की दुआ है जो मेरे साथ है। और ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में महफ़िल मिलाद पढ़ना और प्रोग्राम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मरियम अभी कुछ आप हमें सुना रही हैं? जी, मैं आपको एक कलाम सुना रही हूँ, पंजाबी कलाम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तेरी खैर होवे पैरदारा, रोज़े दी जल चुम लैण दे। तेरी खैर होवे पैरदारा, रोज़े दी जल चुम लैण दे। असां करना है सोने दा नज़ारा, असां करना है सोने दा नज़ारा, रोज़े दी जल चुम लैण दे। तेरी खैर होवे पैरदारा, रोज़े दी जल चुम लैण दे।
रमज़ानुल मुबारक ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का एक बड़ा इनाम है और ये वो बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमान हर तरह से अपने रब ताला को राज़ी कर सकता है और कोशिश भी करता है। रमज़ान हमें सब्र, मोहब्बत और दूसरों की मदद करने और मुश्किलात में घिरे अफराद के काम आने का दर्स भी देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर उन लोगों की मदद करें जो हमारी मदद और तवज्जो के शदीद मुंतज़िर और हक़दार हैं। और इसी तरह से सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज एक ऐसी ही बहुत प्यारी मासूम और छोटी सी बच्ची और उसके वालिदैन ख़ास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त आप सब की, हमारे तमाम देखने वालों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। आयशा इस छोटी बच्ची का नाम है और हम आपसे अपील करते हैं कि आयशा, जिसके बारे में अभी हम उनके वालिदैन से बात भी करेंगे, 6 साल की ये बच्ची है, इसकी उम्र है और इसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था जब ये 1 महीने की थी। जगह जगह इलाज करवाया लेकिन ये ठीक नहीं हो सकी है। इससे पहले जब हम ब्रेक से वापस आए तो आपको कुछ फुटेजेस दिखाई जो कि आयशा के घर की थी। आप उन फुटेजेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके वालिदैन किस तरह से गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए कितना मुश्किल है आयशा का इलाज, आयशा का ख्याल रखना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो हम आज क्यों आपसे हम मदद चाहेंगे कि आप आयशा के वालिद की मदद करें, क्योंकि आयशा के वालिद एक सब्ज़ी फ़रोश हैं और वो आयशा का इलाज करवाने की सख्त भी नहीं रखते। इसलिए आयशा आपकी ख़ास तवज्जो की मुंतज़िर है और आयशा के वालिदैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे आप? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। क्या हुआ था आयशा को? इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, 25 दिन की थी। 25 दिन की थी? तो इसको झटके लग रहे थे। फिर हम पहले मेवा सा ले गए, फिर चिंटर हॉस्पिटल ले गए और रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला। फिर 2.5 साल उधर रही। 2.5 साल तक इलाज चलता रहा। 2.5 साल मशीनों में लगी रही। मशीनों में लगी रही है। एक ही बच्चा आपका? यही बच्चा? बड़ा बेटा है 9 साल का, वो ठीक है। अच्छा, वो ठीक है। बाकी 2 बेटियां बाद में, वो भी बहुत बीमार थी, वो बहुत। अच्छा, अभी आपने कहा कि 2.5 साल तक ये इलाज कराते रहे आप अस्पताल, उसके बाद भी इलाज हुआ? अभी भी चल रहा है, इसको डेली दूसरे दिन झटके लगते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, गर्दन तो बुखार हुआ तो क्या पूरी बॉडी मफलूज हो गई है? बॉडी में जान नहीं, बिल्कुल खत्म। ये देखो ना, ऐसे इसको जुबान बाहर, आंखें झटके लगते हैं डेली इसको। तो फिर जब इसे तकलीफ होती है फिर आप इसे डॉक्टर के पास लेके हाँ, फिर लेके जाते हैं। अभी भी इस तकलीफ में रोज डेली या दूसरे लेके जाते हैं। और इलाज क्या है इसका? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? इलाज क्या है इसका? इलाज तो वो कहते हैं ऐसे ही रहे जब तक जिंदगी उसकी। अच्छा, नहीं, इसी तरह से आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो दवाइयाँ देते रहेंगे? दवाइयाँ देते हैं। तो उस दवाइयों पे कितना खर्चा आता है? उसमें 20-25-30 हज़ार महीने खर्चा आता है। तो जो आने जाने का खर्चा है वो अलग है, इसको संभालने के लिए हर टाइम रोती रहती है, तकलीफ में रहती है। तो कैसे पूरी करते हैं आप? तो सब्जी बेचते हैं। यही वाला मदद करता है, कभी कोई मदद करता है, कभी कोई, कभी कोई। हम तो अभी बहुत परेशान हो गए इसके लिए ना। अब तो आप घर में ही होती हैं, हाउस वाइफ हैं आप, घर में काम का, और आपके शौहर हैं, हस्बैंड हैं, सब्जी बेचते हैं। तो आप जो है वो बच्ची जिस तरह डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, आप खुद इसको सारा दिन ऑब्वियसली संभालती होंगी, तो आपका जो खर्च आता है सिर्फ इस बच्ची को संभालने पे, उसको कैसे मैनेज करते हैं? लोग मदद करते हैं आपकी? नहीं करते, बस आपको जो है उसी में गुजारा करना उसी में पड़ता कर है। लेते हैं। ज़्यादातर तो ये घर पे ही होते हैं, सिर्फ एक बेटी की, इस बेटी की वजह से। तो एक माँ होने की हैसियत से कितनी तकलीफ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से देख के क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? अब तो मैं खुद भी बीमार रहने लगी हूँ। आपको क्या बीपी हाई की पेशेंट हूँ, थायराइड का मसला मुझे गले का है। इसको उठाती हूँ, पट्टे मेरे कमज़ोर हो गए हैं, इसको अब हैंडल नहीं कर सकती हूँ मैं। सही, ज़्यादातर मैं ही करता है। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इसी तरह ये देखा, अब ये अल्लाह का करम है ना, अल्लाह जब करम कर दे तो बीमारी भी कट जाती है इंसान की, लेकिन जहाँ तक आपको इसकी रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए जो मुश्किल पेश आती है, उसके लिए हम चाहेंगे कि आपकी मदद के लिए हम लोगों से अपील करें। स्क्रीन पर जनाब अमजद अली साहब का अकाउंट नंबर चल रहा होगा और इनका मोबाइल नंबर भी है। बिल्कुल, अमजद अली नाम है आयशा के, जो वालिद आपके सामने आप जो स्क्रीन पे दे रहे हैं, इनका ये अकाउंट नंबर है
और डायरेक्टली आप इनकी मदद कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी हम इनका चलाएंगे, कॉल करके भी आप इनकी मदद करना चाहें, जिस तरीके से भी हम चाहेंगे दिल खोल कर आप इनकी मदद करें और बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल, और आपकी मदद, आपके चंद पैसे आयशा को ज़िंदगी दे सकते हैं। जितनी पेन में ये छोटी मासूम बच्ची आती है और उसके बाद उसके वालिदैन उसको भाग भाग के डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, फिर अल्टीमेटली वो उसको जो उसका एक प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट है, इलाज होता है और उसके बाद ये कुछ देर सुकून में आती है। तो आप सोचें आपकी मदद से आयशा की जो सांसें हैं वो थोड़ी सुकून में आएंगी और वो उसका आपको एक तो सवाब भी होगा और दूसरी बात ये है कि हमारा मज़हब हमें मदद करने की तलकीन भी करता है और ये महीना भी ऐसा है। तो आयशा की दिल खोल कर मदद कीजिए। हमारी आपसे ये अपील है, आपसे दरख्वास्त है कि जितना मुमकिन हो सके दिल खोल कर आयशा की मदद करें। और इनके नंबर्स, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चलते रहेंगे हमारे पूरे शो में और हम चाहेंगे कि आप दिल खोल कर इनकी मदद कीजिए। इस महीने में जहां इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा है, उसी तरह किसी की मदद करने में नेकियों का जो आप नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं उसका सवाब भी 70 गुना ज़्यादा है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप अमजद साहब की मदद कीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। रमज़ान की फ़जीलत, इबादत क्या होनी चाहिए और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की जो कसरत इबादत होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि बरकत, रहमत और सादत से ये भरपूर अजीम माह सयाम का आगाज़ हो चुका है। और खुदा का करिश्मा देखिए कि कैसे उसके बंदे आज भरपूर तैयारी से उसे राज़ी करने में मसरूफ़ हैं। और गर्मियों का रोज़ा है ख़ास तौर पर, और लोग रोज़ा रखने में बहुत आगे आगे होते हैं कि वो इस रमज़ान को जाने ना दें, बल्कि इसकी सारी रहमतें जो हैं वो अपने दामन में समेट लें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिलसिला इसी तरह भरपूर तैयारी के साथ अपने रब को राज़ी करने में लोग जो मसरूफ़ रहेंगे, ये अमल पूरे 30 दिन रहेगा। रमज़ानुल मुबारक जिस कदर महबूब महीना है वैसा ही इसका अदब और एहतराम भी है। क्या आदाब हैं इस अजीम बरकतों वाले मेहमान महीने के और इसकी फ़जीलत क्या है और कैसे इसका इस्तकबाल करना है, कौन कौन सी इबादतें हैं जो बेहद मकबूल हैं, जो बहुत अफजल हैं, कितनी कसरत से ये इबादतें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं सईद साहब? खैरियत से हैं, सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। आप ये भी एक नेकियों में से नेकी है ना कि हम बेतहाशा सवाल करेंगे आपसे और लोगों की रहनुमाई के लिए आप जवाब देंगे और सदका जारिया है ये। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें अगर एक बंदा नेकी करता है तो 70 गुना उसको सवाब मिलता है और ये फिर बढ़ भी जाता है इखलास के हवाले से। नफल अदा करता है तो फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, फ़र्ज़ का 70 गुना सवाब मिलता है। इसमें जो खूबसूरत पहलू है वो ये है कि इसमें जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता, और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता, और जो सरकश शयातीन है उनको जकड़ दिया जाता है। और फिर अल्लाह की तरफ से निदा आती रहती है पूरा महीना मुसलसल, या बाग़ी अल खैर अकबिल, नेकी के तलबगार, अब तो पूरा माहौल है, अब तो आगे बढ़, नेकी कर ले, या बाग़ यशर, हाँ जी, बुलावा आता रहता है, या बाग़ यशर अक्सर, वो बुराइयों में गिरे हुए इंसान अब बस कर दे, अब इस महीने में तो बस कर दे। अब रब ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, फिर भी तो उनमें घुसना चाहता है, तो थोड़ा सा ख्याल कर। अच्छा, इसी तरह इसके 3 पहलू खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के बड़े नुमायाँ हैं। हदीस पाक में आता है, जो आदमी ईमान और एहतसाब, सवाब की नीयत से, खुद एहतसाबी की कैफियत से गुज़रते हुए रोज़ा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक फ़जीलत। दूसरी फ़जीलत ये है कि जो शख्स ईमान और एहतसाब की नीयत से रात का क़याम करता है, जो तरावी में हम कुरान सुनते हैं, उसके भी पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या बात है। और तीसरा ये है कि जो शख्स ईमान और एहतसाब की नीयत से लैलतुल क़द्र का क़याम करता है, उसके भी पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
तो इसमें क्या बात। हर रात इनामात दिए जा रहे हैं। अब लेने वालों पर मुनहसर है कि वो कितना इससे सही। हासिल कर सकते हैं। ये नहीं, फजीलतें इतनी हैं और ये लेने वाले पर मुनहसर है कि वो कितनी समेट कैसे सकता समय है। थोड़ी आदाब की बात भी कर लेते हैं। बहुत से लोग बड़े कंसर्न हैं इस मामले में कि आदाब क्या हैं, एहतियातें क्या हैं। देखिए ना, सबसे बड़ा नुक्ता जो जहन में रहना चाहिए, रोज़ा वो इबादत है जिसमें बंदा जायज़ और हलाल कामों को भी छोड़ देता है। खाना जायज़ है, पीना जायज़ है, ज़रूरतें मुझे पूरी लगा करना किसी जायज़ और है। तरफ इशारा कर रहे हाँ हैं जी, आप। तो हलाल चीज़ों को भी बिल्कुल। आदमी तर्क कर देता है, इसके आदाब में से है। तो फिर कितनी बुरी बात होगी अगर कोई बंदा इस महीने में हराम का इर्तिकाब करे और रोज़ा रख कर करे। बेशक। तो इसके आदाब में से एक अदब तो ये है। दूसरा ये है, एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलना तर्क नहीं करता तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बेशक। ठीक है, तो इस दूसरा पहलू ये है। तीसरा पहलू ये है इसके आदाब में से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गशा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। यानी ये वो अमल है कि जो निस्बत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम कर देता है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब हम एक गुनाहगार मोमिन अल्लाह की बारगाह में पकड़ की जद में होगा, उस वक्त जिन्होंने शफाअत के ज़रिए से छुड़ाना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। लेकिन अगर वो भी अपनी निस्बत से महरूम कर दें तो फिर कौन छुड़ाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो मिलावट करते हैं, खुसूसी तौर पर जो हमारी इफ्तारी का सामान है या सहरी का सामान है, उसमें जो मिलावटें होती हैं, करते हैं, नाप तोल में हाँ जी, कमी, ये तो बिल्कुल बड़ी ऐसा। आम सी बात है और बिल्कुल रमज़ान में हम ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं। बाकी जितने भी आप देखें गैर मुस्लिम की जितनी भी कंपनियां होती हैं और बाहर के ममालिक में जाएं, वो बाकायदा मुसलमानों के लिए पैकेज देते हैं, रिलैक्स करते हैं, और हम जो है वो मुसलमान होते हुए इस्तेहसाल करते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स हैं जनाब बाहर, और जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होने वाली अशियाँ है ना, ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब जिस तरह खजूर है, आटा है, मशरूबात है, बहुत चीज़ें, उस पर वाकई सेल लगा देते हैं। बिल्कुल सेल लगा देते हैं। बिल्कुल। तो इसके आदाब में से एक ये भी है कि जो शख्स भी सब्ज़ी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, या माकूलात और मशरूबात में से कोई चीज़ बेच रहा है, उसने अल्लाह को जवाब देना है। और अगर वो रोज़ादारों का इस्तेहसाल किया और रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती और किसी की अर्श तक चली गई, तो फिर उसका कुछ नहीं रहना। और एक इनफरादी हैसियत में एक रोज़ेदार को किस तरह से आदाब करनी चाहिए रमज़ान के महीने? इनफरादी हवाले से एक तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बावुज़ू रहे। ज़ाहिर है पहले ही इबादत में है, रोज़े की हालत में बावुज़ू रहे, एक तो ये है। दूसरा, अगर वो उसको फुर्सत मिलती है तो ये कुरान का महीना है, कसरत से तिलावत करें। जब बैठा है, वो हाफिज़ नहीं है तो ज़ाहिर है वो देख के पढ़ेगा, और अगर हाफिज़ है तो वो चलते फिरते भी तिलावत कर सकता है। ये इसके आदाब में है। और अगर हाफिज़ नहीं है कोई शख्स, तो फिर साहिब कुरान पर दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलसल करे। तो इस्तिग़फ़ार, दरूद, ये सिलसिला, और फिर कुछ नवाफिल है, जिस तरह सलात तस्बीह है वो पढ़े, मसनून है सलात तस्बीह, सलात तौबा है वो पढ़े, सलात हाजत पढ़े, जो ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो ये तो सारे दरवाजे अब रहमत के खुले हुए हैं, तो इंसान को आगे बढ़कर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कुरान पाक के जिक्र कर रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं। आजकल तो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, ये भी एक बहुत से लोग ऐसा सवाल भी करते हैं, तो क्या मोबाइल फ़ोन पे कुरान पाक डाउनलोड करके उसको पढ़ना दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। पढ़ा जा कुरान पाक है, सहूलत है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये है कि अगर बावुज़ू नहीं है तो फिर हाथ लगाने से जहाँ आयात है उसको गुरेज करे, तो कोशिश कर ले कि वुज़ू कर ले। सही। जब हम बात कर रहे हैं आदाब की, इबादत की, इस महीने का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम कैसे किया करते थे? क्योंकि उसवा हसना हमारे सामने वही है, हम उनकी ज़िंदगी की बातें, उनके अमल अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, और अच्छी बातें, उनकी जो बातें हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ख़ासतौर पर रमज़ान का महीना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, शद्दा मेज़ारा हुआ, अपनी कमर कस लेते थे और ख़ुद भी जागते थे और घर वालों को भी जगाते थे। तो ये वालिदैन के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को और घर वालों को जो रोज़े की इबादतें हैं उनमें भी शामिल करें, जैसे तरावी है, और बाकी जो मामलात है रोज़ेदारी के उसमें भी शामिल करें।
اور اس کا تو باقاعدہ انتظار ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ آپ کا ملتا ہے جس میں اس مہینے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ شہر عظیم ہے, عظمتوں والا مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, یہ صبر والا مہینہ ہے, یہ مواسات غم گساری والا مہینہ ہے. اب ان 4 امور کو بھی دیکھ لے تو عظمت بھی ہے اس میں, برکت بھی ہے, اور اس کے صبر بھی ہے, اور غم گساری بھی ہے. نیکی وہ نہیں ہوتی, اسلام میں وہ نیکی نہیں ہے کہ آپ اللہ کرتے رہیں. نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ بانٹیں, لوگوں کے درد بانٹیں, لوگوں کی تکلیف کم کریں. تو یہ اگر لوگوں کی مدد کریں, اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ صحیح نیکی ہے. اور نیکی کا جتنی بھی ہماری عبادات ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کام اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ انسانیت ڈیولپ ہو جائے. اور جب انسانیت ڈیولپ ہو جائے, احساس پیدا ہو جائے, تو پھر اس کو کوئی برا نظر نہیں آتا, پھر اس کو کوئی دکھی نظر آئے تو وہ دکھ خود محسوس کرتا ہے. احساس اس کیفیت تک پیدا ہو جاتا ہے ان ارکان اسلام کی ادائیگی سے. کیا بات ہے. بالکل. تو روزہ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, جو اس کی فضیلت ہے عبادات کی بھی اور نیکیوں کی ہر معاملے میں جو ثواب کا ایک پہلو ہے, وہیں جو گناہ کا پہلو ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. ظاہر ہے, دیکھیں تقدس ہے رمضان المبارک کے مہینے میں, تو جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ بڑی خطرناک سچویشن. اب جس طرح آپ ملاوٹ کرنے والوں کی مثال دے رہے تھے, یا پھر مہنگائی کرنے والوں کی, تو یہ چیزیں ساری ان کو سوچنی چاہیے کہ وہ صرف ایک چند روپوں پیسوں کی خاطر جو ہے وہ ایمان خراب کریں, نیکیاں ضائع کر رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں. ہاں جی, ثواب کمائیں, ان کے اوپر فرض ہے. مثلا دیکھیں کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک بندہ سارا دن مشقت کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, گرمیوں کا روزہ ہے, تکلیف برداشت کرتا ہے. ایک آدمی اس کو کھجور کے ذریعے سے ایک کھجور دے کر, یا ایک پانی کا گھونٹ دے کر, یا ایک دودھ کا گھونٹ دے کر اس کا افطار کراتا ہے, تو روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی. لیکن جو یہ کام کرتا ہے, تھوڑا سا کام کیا اس نے, ایک کھجور دے کر, ایک پانی کا گھونٹ یا ایک دودھ کا گھونٹ ایون دے دیا اس نے, تو اس کو سارے دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے جو روزہ رکھ سکتے ہیں, صاحب استطاعت ہیں, صحت مند ہیں, وہ تو یہ کام کریں. اور جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے, تو ان کو آگے بڑھ کر پھر روزے داروں کا خیال رکھیں, اور روزے داروں کی عزت اور احترام اور آبرو کریں. اس میں کون کون سے لوگ ہیں جن کا ہم احترام کر سکتے ہیں؟ ایک روزہ دار ہے, ایک وہ شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن پاک سنا رہا ہے, ایک وہ شخص جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہے. ان کی ریسپیکٹ اس مہینے میں بڑھ جانی چاہیے. ویسے بھی ایک ہے, لیکن اس مہینے میں ان کا پروٹوکول جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے ہوئے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے روزہ اور ہماری صحت. روزہ ہماری صحت پر کئی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ شدید گرمی میں اپنی صحت کا ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. روزے کی حالت میں شدید گرمی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اور کس طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھنا, اور کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. بالکل تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسد اللہ محمود صاحب نے جوائن کیا ہمیں. تھینک یو فار کمنگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں آپ. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیصل. کیسے ہیں آپ فیصل؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. بیسکلی ہم روزہ ہے اور گرمی کی مناسبت سے, اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس میں پھر بھی اندر سے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے. اس کن احتیاطی تدابیر کے ذریعے روزہ رکھا جا سکتا ہے, اور جو ایک صحت مند انسان ہے وہ گرمی سے کیسے بچ سکتا ہے, اور اس کا جو کام ہے اگر وہ مشقت والا ہے تو پیاس اور بھوک سے کس طرح وہ لڑ سکتا ہے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے. کالرز بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. تو سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ روزے رکھنے کے طبی فوائد کون کون سے ہیں ڈاکٹر فیصل؟ اچھا, طبی فوائد تو بہت سارے ہیں روزہ رکھنے کے. بنیادی طور پہ یہ مہینہ جو ان سے ہمیں ڈیٹاکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, پورا مہینہ سال جتنا ہم لوگوں نے گند والا کھایا ہوتا ہے تو یہ اس کو ہمیں ڈیٹاکس کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے.
اس میں جون سی چیزیں ہماری بہتر ہو جاتی ہیں اس میں جگر کے افعال جن سے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں, معدے کے افعال ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہماری ذہنی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت گہرا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اسٹریس, ڈپریشنز, شوگر, جتنے ڈائجسٹیو پرابلمز ہیں وہ سارے ہمارے اس سارے 1 مہینے کے اندر بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ سال کا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی صحت کو جتنا بہتر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, یہ ہمارے اپنے اختیار پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے پاس رکھا ہے تو اس میں ہمیں بے انتہا جو ان سے فضیلتیں دی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں شوگر کے پیشنٹ جو ان سے وہ بھی تھوڑی بہت احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں, بلڈ پریشر کے بھی رکھ سکتے ہیں, باقی جتنی بھی بیماریاں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے رکھ سکتے ہیں. اس مہینے کا ایک اسکیجول تیار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ ہم بھی اپنے کلینک سے جو ان سے ہیں جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں, جس طرح کے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو ڈائٹ پلان بھی دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس ڈائٹ پلان میں رہتے ہوئے اپنے رمضان کو گزارنا ہے. تو الحمدللہ بغیر کسی مسئلے کے بلکہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تو ظاہر ہے گرمیوں کا روزہ ہے, 15 گھنٹے کا یہ روزہ ہے, تو جو بیمار نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی بڑا ہے کہ اچھا ڈی ہائیڈریشن کے بہت ایشوز ہو جاتے ہیں, اور پھر جب روٹین چینج ہوتی ہے آپ اچھے طریقے سے سحری نہیں کھا سکتے, یا پھر ہم جیسے آپ ڈائٹ پلان کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ چیزیں نہیں لے سکتے سحری میں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں پراپرلی لینی ہے. تو ایک اچھی ہیلدی سحری کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دہی ضرور کھانی چاہیے. جی بالکل, دہی ضرور کھانی چاہیے. اچھی ہیلدی سحری میں جو ان سے نا اپنا جو کا دلیا کا ضرور شامل کیجیے. عام جو ہم سحری کر رہے ہیں اور سحری کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیجیے. تب بجائے اس کے کہ 15-20 منٹ پہلے اٹھیں, آپ تقریباً گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد تھوڑا سا پورشن لے لیں اور تھوڑا سا پورشن آپ آدھے گھنٹے کے بعد لے لیں. تو اس سے آپ تھوڑا سا بہتر کھا لیں گے, زیادہ کھا لیں گے, لیکن آپ کے معدے کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ. جو کا جو دلیا ہے اس کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کا دلیا جو ان سے ہے وہ اس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے, وہ باڈی میں آہستہ ریلیز ہوتا ہے, تو آپ کی باڈی کی جو انرجی ہے وہ کافی دیر تک رہتی ہے. جی, تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دہی کے ساتھ اگر آپ الائچی کا قہوہ پی سکیں یا الائچی کا شربت پی سکیں. اس میں تھوڑا سا یہ کلیئر ضرور کرنا چاہوں گا, جو بازار کے ریڈی میڈ ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کیجیے. اس میں شوگر کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کی پیاس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. وقتی طور پہ کم کرتا ہے لیکن زیادہ کر دیتا ہے, بعد میں زیادہ. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو تھوڑے بہت شربت ہیں, شربت بادام ہے, شربت سندل ہے, شربت الائچی ہے, ان کو گھر میں بنا کے رکھیں اور بڑے آسان ہے بنانے, اور اس کا استعمال جو ان سے سحری میں کریں, تو انشاءاللہ پیاس کی شدت کافی حد تک کم رہتی ہے. صحیح. اچھا, میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر اسد اللہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بے شک یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ. I don't know if anyone mind my question, کیونکہ یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ نا بہت لاجیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 15 گھنٹے آپ نے بھوکا رہنا ہے. جی, ٹھیک ہے, آپ نے عبادات کرنی ہے, وہ نیکیاں کمانی ہیں, وہ ایک آپ کے مسلمان ہونے والی سائڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک برکتوں کا مہینہ نا, ڈیٹاکسیکیشن اور یہ سارا. میڈیکل رو سے 15 گھنٹے آپ بھوکے ہیں, اس کے نقصان اور فائدے کیا ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس طرح بلایا یہاں اس فورم پہ ہم لوگوں کو اویئر کریں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پر ڈے کتنی کلو کیلوریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اراؤنڈ 2000 to 3000 پر ڈے ہمیں کلو کیلوریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایک مطلب ایکٹیو بندے سے ڈی ایکٹیو, مطلب ایک بندہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو اس کو اراؤنڈ 2500 سے 3000 تک ریکوائرڈ ہوں گی پر ڈے. ایک بندہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس ورک ہے, بالکل اتنی زیادہ وہ بندہ نہیں ہے, جو ورکنگ کلاس ہمارے لوگ ہیں, ان کو شاید 1500 to 2000 تک چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ تو ہو گیا کلو کیلوریز. اسی طرح ہی پانی, واٹر انٹیک جو ہمارا ہوتا ہے, واٹر انٹیک میں ہم لوگ تقریباً 1.5 لیٹر سے لے کے 3 لیٹر تک تقریباً. پھر وہی بات ہے کہ گرمی کتنی ہے باہر, وہ کس طرح ایکٹیو ہیں, کام کس طرح کر رہے ہیں, مزدور ہے, کیا بندہ ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اب روزہ بیسیکلی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیریسلی اسپیکنگ ہمارے لاسٹ 25 ایئرس میں میڈیکل سائنس نے خود ان چیزوں پہ آ کے تحقیق کی ہے کہ بہت ساری ایسی نیچرل چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم میڈیکلی پیشنٹس کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں بلڈ پریشر کی, تو ہم بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ, لیکن ہماری میڈیکل ریسرچ نے یہ اب آ کے اس میں وہ آئے ہیں, اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ
अगर जो पेशेंट फास्टिंग पे हैं, जो लोग जैसे हमारे ये रमज़ान, और वो लोग स्पेशली जो लोग महीने में 1 या 2 रोज़ों का अहतमाम करते हैं, उन लोगों में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है कंपेयर टू दोस्त जो लोग नहीं रखते। क्योंकि हम ब्लड प्रेशर के अंदर क्या करते हैं, लोगों को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर रहे होते हैं, वाटर रिस्ट्रिक्शन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ आ जाती हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो वाटर रिड्यूस हो जाता है, हमारा सॉल्ट रिड्यूस हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रेगुलराइज होना शुरू हो जाता है। सो एक तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है हमारे पे। सेकंड, जो शुगर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अक्सर लोग हमारे से करते रहते हैं कि जी शुगर है और उसमें कैसे हम रोज़े के साथ एहतमाम करें। शुगर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि शुगर वाला पेशेंट डिपेंड करता है कि वो ले क्या रहा है। वो बेसिकली इंसुलिन पे है, वो ऑरल टैबलेट्स पे है, और वो कितने आर्ली वो शुगर ले रहा है। यूजली रोज़े के साथ देखा गया है कि शुगर वाले पेशेंट में शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ जी, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग डरते हैं कि जी शुगर लो ना हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो बिल्कुल एक बहुत, तो उसके लिए फिर हम अपने पेशेंट्स को, लोगों को बिल्कुल ये अवेयर करते हैं कि जब भी रमज़ान आए उससे 1 to 2 months बिफोर आप लोग डॉक्टर्स के पास जाएँ और उनसे अपना प्लान डिस्कस करें, सो डैट आपको रोज़े में प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको पता हो कि आपने मॉर्निंग पे कितनी इंसुलिन लेनी है, इवनिंग पे कितनी लेनी है, अगर टैबलेट्स ले रहे हैं तो उसको आपने किस तरह एडजस्ट करना है। तो बिल्कुल सही। इसी शॉर्टकट इन अदर वर्ड्स मैं आपको बताऊं तो रोज़े में माशाल्लाह ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। शुगर वाले पेशेंट्स बड़े अच्छे से रेगुलराइज होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जी जिनके खिलाफ रोज़ा जो है वो मौसर किरदार अदा करता है। और मैं एक यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अक्सर आपने देखा होगा कि एडिक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ का लोग जो सिगरेट ले रहे होते हैं, गुटखा और इस तरह की पान, ये सुपारी, वट ये जो तरह तरह के छोटे छोटे बने हुए, तो उस तरह लोगों की जान नहीं छूटती। बट आई हैव सीन इन माई पेशेंट्स, जब वो रोज़े में आते हैं, मतलब जब माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और लोगों में उल्टी एक मोटिवेशन डेवलप हो जाती है। वो मतलब लोग मुझे आके हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब ना हमें सिगरेट की कोई वो हो रही है तलब, ना हमें, और उसका डायरेक्ट फ़ायदा देखें, जितनी बीमारियाँ हार्ट की हैं वो सारी डायरेक्ट लिंक टू सिगरेट स्मोकिंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो बताएं कि पानी कम पिए और आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए पानी की। पानी तो यकीनन कम पीना चाहिए। एकदम तो बहुत ज़्यादा पानी पीने नहीं चाहिए, मेडिकली ही ठीक नहीं है। और जैसे ख़ुद बता रही हैं कि फिर तबीयत भारीपन हो जाता है, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो भी फ्रूट आया हुआ है, सीजनल फ्रूट, उसकी आप स्मूदी बना के रखें। स्मूदी जो सी है वो अगर आधा गिलास भी आप पी लेते हैं तो आपको ताकत भी मिलती है, प्लस ये कि पानी की जो सी कमी है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए इफ्तारी के फ़ौरन बाद कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। हाँ, इफ्तारी से लेके फिर जब तक जाग रहे हैं, इशा तक, तहज्जुद तक, जब तक जो जाग रहा है, तो उसमें फिर छोटे छोटे पोर्शंस में लिक्विड्स लेते हैं। अली हसनैन का भी जवाब दे दीजिए, जो गर्मी हो गई। अच्छा, जिनको वैसे हर्बल मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स, देखिए साइड इफेक्ट तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। साइड इफेक्ट तो हमारी रोटी के भी हो सकते हैं, है ना, गंदम हम खाते हैं उनसे भी एलर्जीज होती हैं। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उस मेडिसिन सिस्टम से प्रॉब्लम हो गया। हाँ, हो गया अगर इनको, तो उसमें बेहतर तो ये है कि ये उसी हकीम साहब के पास या हर्बलिस्ट के पास जाएं और जाके पूछें कि भाई ये दवाई खाई थी, आई डोंट नो कि उन्होंने क्या दिया ना, लेकिन हाँ मैं उनको एक टिप दे देता हूँ, उससे देख लीजिए अगर उनको फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। कि दही ले लीजिए और दही में अस्पगोल का छिलका और साबित अस्पगोल, अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके सहरी में खा लीजिए या इफ्तारी में खा लें। और खाली पेट? हाँ, किसी बेशक इफ्तारी के या सहरी के बाद भी खा सकते हैं। तो उससे जो है इनकी जो सी तजाबियत सी बन रही है और जिसकी वजह से इनको जलन और तकलीफ़ हो रही है, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी सहूलत हो जाएगी। सही, बिल्कुल। ये तो हम आपसे सवाल करते रहेंगे और मज़ीद ख़ास तौर पर सहरी के लिए भी आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, जैसे अभी आपने पेट की तजाबियत, मैदे की तजाबियत ख़त्म करने के लिए बताया। सईद साहब, उससे पहले आपसे एक सवाल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रमज़ान की, इससे पहले भी आपसे बात करते हैं कि बरकतें, फजीलतें और ख़ास तौर पर इबादत की भी, और उस वक्त हंसना हमारे सामने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ सामने है जिसको हम जिस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं और रमज़ान के महीने को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, उनके सहरी और अफ्तारी के क्या मामूलात थे? जी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि सहरी करो, इसमें बरकत है। और एक फिर पैगाम रहमत भी दिया है
کہ جو سحری کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. تو یہ ایک پہلو جو ہے نا یہ بڑی بشارت ہے ایک امتی کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کو سحری کی ضرورت نہیں ہے, ایک گھونٹ بھی اگر آپ کو پانی پینا پڑتا ہے اور اتنا آپ جذب کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, خالی پیٹ نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو یہ فضیلت ہے. دوسرا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو افطار تھا اس میں خصوصی طور پر اہتمام ہوتا تھا کہ کھجور, دودھ استعمال ہوتا تھا, عربوں میں دودھ ہوتا تھا, کھجور ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ فروٹ ہوتے تھے, پھل ہوتا تھا. تو یہ چیزیں پانی کا وہ استعمال کرتے تھے. لیکن ایک بات ان میں تھی کہ وہ اتنا کھاتے تھے جتنا ضرورت ہوتا تھا, زیادہ نہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک حکیم آئے اس دور میں جو ڈاکٹر ہوتے تھے, کافی ایک بادشاہ نے بھیجے تھے, بطور تحفہ بھیجے تھے کہ آپ کے لوگ اگر بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو وہ کافی مہینے رہے تو اجازت لینے لگے, تو پوچھا کیوں جا رہے ہیں, تو کہنے لگے ادھر بیماری کوئی نہیں ہوتا. تو صحابہ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں ضرورت محسوس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان اور رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق, جس طرح میرے محترم ڈاکٹر صاحبان ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, ضرورت کے مطابق اگر لیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے, اور جب ضرورت سے زیادہ لیں گے تو پھر بیماریاں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا جاتی ہے. یہی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ پورشن میں کھائیں, بیلنس ڈائٹ لیں, اور یہ ایک بڑا اچھا مہینہ ہے جس میں ہم ان چیزوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بالکل. ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسی سے ریلیٹڈ چھوٹا سا آپ اگر اس کا جواب دے دیں سعید صاحب, کہ جو افطاری تو ہمیں پتہ ہے اذان ہوئی مغرب کی تو وہ افطاری کا وقت ہو گیا, سحری کے وقت کا تعین کیسے ہے؟ اذان جو فجر کیا اس سے کتنی دیر پہلے, کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ رات کا کھانا اور سحری اکٹھی کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم سونے لگے ہیں اور بس ہمارا ہم نے سحری کر لی. ٹھیک ہے, اس کا کیا تعین؟ اس میں نا بڑا دلچسپ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ہدایات دی ہیں ان میں ہمارا فائدہ ہے, سراسر فائدہ ہے. آپ کا حکم ہے کہ افطاری جلدی کرو. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو تو اس کو ڈیلے نہ کریں, فوراً کرو, اور سحری تاخیر سے کرو, دیر تک کرتے رہو. یہ حکم ہے, اسپیشل حکم ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور چیز اسی سے ذیلی ایک چیز نکلتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے, اس لیے حکم دیا کہ سحری اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے وہ محدثین نے بیان کیا ہے, کچھ 50 آیات کی تلاوت جتنے وقت میں آدمی کر لیتا ہے اتنا وقفہ ہوتا تھا. یعنی کوئی 5 سے 10 منٹ آپ بنیں گے, اس سے زیادہ نہیں بنتے. تو جیسے سحری کی ہے اس کے بعد فوراً نماز پڑھ لے تاکہ کھانا انہضام کی طرف چلا جائے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو جہاں جماعتیں لیٹ کی جاتی ہیں, لوگ پھر جماعت کی سعادت سے, اور کچھ لوگ نماز سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے, پھر وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, اٹھنا پھر ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے جو مساجد کے لوگ ہیں ان کو اس سنت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کی صحتیں بھی درست رہیں اور وہ نیکی کے کام میں, جماعت میں اور نماز میں شامل ہو سکے. اچھا جی, ہائی بلڈ پریشر, سر درد, دل کے امراض, دمہ, اور ایک بھائی ہمارے جو کہہ رہے تھے کہ میں پیاس گزارا نہیں ہے, تو دل, دمہ, سر درد, بی پی کا میں میرا خیال پہلے کا آنسر پہلے کرتا ہوں. وہ جو ایک بہن تھیں جنہوں نے ہیڈ ایک کی کمپلین کر رہی تھیں کہ ہیڈ ایک بڑا ہوتا ہے, اور وہ دیکھیں ہیڈ ایک کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز روزے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ فلوئڈ ڈپلیشن سے ہے, جو مجھے ان کا لگ رہا ہے. کیونکہ بلڈ پریشر اوبویسلی وہ کہہ رہی تھی کہ میرا لو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے, جس میں آپ نے پوچھا بھی کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, یہ وہ کہہ رہی تھی کہ لو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے ہیڈ ایک بڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ سب سے اپنا جو فلوئڈ انٹیک ہے اس کو بہت زیادہ بڑھائیں. مطلب اسپیشلی اوبویسلی سحری پہ ہم اتنا پانی نہیں لے سکتے. جیسے بھی ڈاکٹر فیصل بتا رہے تھے کہ پانی جو ہے وہ رات کو ہی آپ بار بار لیتے رہیں. مطلب جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ 12 بجے تک جاگ رہے ہیں یا 11 بجے تک تراویح نماز کے بعد, تو آپ وقفے سے بار بار پانی انٹیک زیادہ رکھیں, اور کوشش کریں کہ جو باقی ڈے ٹائم ہمارا ہے اس میں انرجی تھوڑا کنزرو, آپ اس میں اندر یہ نہ کریں کہ بالکل, کیونکہ آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے, سمر کا سیزن ہے, تو اس میں جا کے باہر جب جائیں گے
ख़वातीन के लिए डिफरेंट काम भी होते हैं, घरों के चूल्हे के आगे खड़े होना और इस तरह के सो मैनी थिंग्स। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके अपनी फ्लूइड डिप्लीशन को कम, मतलब फ्लूइड रिटेन रखें। पानी जितना अच्छा ज़्यादा पिएंगे मेरा ख्याल है कि उससे हेडेक उनका बेहतर होना, मतलब जूसेस, मिल्क शेक, जी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा दलिया खाएं, जी बिल्कुल इस तरह की चीज़ें वो लेते, और स्पेशली वो चीज़ें लें जो जिनकी एब्जॉर्प्शन डिले होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने दलिए का भी बताया डॉक्टर साहब ने, इसके अलावा बासमती राइस आ जाते हैं, इसके अलावा जो हैं वो और इस तरह की कई चीज़ें जो डिले रखती हैं, जिस तरह आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मॉर्निंग पे सहर पे आप वेजिटेबल्स का अहतमाम करें या फ्रूट्स भी थोड़ा सा लें, तो उससे थोड़ा डिलेड एब्जॉर्प्शन होती है, तो उससे हेडेक्स भी बेहतर होगी। सेकंड क्वेश्चन, दिल की बीमारी, दमे वाला मसला जो था, देखिए दमे का जहाँ तक ताल्लुक है उसका रोज़े के साथ तो एज सच कोई लिंक नहीं है, मतलब रखना, दमा जो है वो एक एलर्जिक है, एलर्जी टू समथिंग। वो आजकल समर सीज़न चल रहा है, हार्वेस्टिंग सीज़न भी चल रहा है स्पेशली। वो कह रहे थे कि मैं रोज़े रख रहा हूँ और मैं दिल का मरीज़ और दमे का मरीज़ हूँ, तो मैं एहतियातें क्या करूँ? जी बिल्कुल, उसी भी मैं आ रहा था कि उसमें जो दमे के लिए पहले मैं बता देता हूँ कि दमे का जो प्रॉब्लम होता है वो एलर्जिक होता है। अब उनको एलर्जी किस चीज़ से है, वो उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका पता होगा, उसको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। आजकल स्पेशली अगर मैं बात करूँ रोज़ों में, तो आजकल हार्वेस्टिंग सीज़न है जिस पे गंदम की कटाई में बहुत ज़्यादा एक लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिससे सांस का ख़राब होना और दमे का लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें एक तो वो मास्क इस्तेमाल करें अगर वो बाहर जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली। सेकंड, अगर वो घरों में भी हैं तो अपने रूम्स में कारपेट्स वगैरह ना रखें, और रूम की अगर सफाई कहीं हो रही है या तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये डस्ट से भी दमा एक्सेसरबेट होता है। तो बेसिकली जो एलर्जेंस हैं, जो भी उनको एलर्जेंस है, उन चीज़ों से वो दूर रहें। तो एक तो वो दमे से उस, और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ देखा ये गया है कि जैसे इफ्तार होता है तो हम लोग ठंडे पानी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पीते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि जो दमे वाले पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं, वो जैसे ही इन चीज़ों में, क्योंकि एलर्जिक टू एनीथिंग, क्योंकि इनके साथ साइनोसाइटिस और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो उन चीज़ों से अवॉइड करें। जैसे ठंडा पानी हो गया, उसको नॉर्मल पानी लें, उसको बर्फ़ वाला ना यूज़ करें। और जो इनको दिल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका फिर अगेन वही प्रॉब्लम है कि इनकी स्टंटिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई, और ब्लड प्रेशर कैसा है। यूजली हम दिल के पेशेंट्स में जो अगर उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन और इस तरह की चीज़ें, एकोकार्डियोग्राफी वगैरह नॉर्मल है आफ्टर स्टंटिंग, अगर एंजियोपैथ हुई हुई है, उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी उनकी हुई हुई है, और अगर वो नॉर्मलाइज अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर देयर इज़ नो हार्म टू हैव फास्ट। ऑल राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड प्रेशर जो है वो आप उसकी टैबलेट्स को शाम को कर दें, और अगर आपको कोई मॉर्निंग पे भी लेनी पड़ती है तो उसमें सहरी से पहले ले लें, उसमें सहरी से पहले लें, लेकिन उसकी डोज को कम करें, क्योंकि जो सहर से पहले आप अगर डोज उतनी रखेंगे जितनी आप नॉर्मल डेज में ले रहे थे, तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए। जिससे वो एक कॉलर थे, उन्होंने ये भी बात की कि मुझे प्यास लगना शुरू हो जाती है बहुत सारी, और मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ बहुत, तो लाइकली हाइपोटेंशन ये सारी चीज़ें कर जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बिल्कुल। अभी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और एक सवाल रहता भी है जो कि डॉक्टर फैसल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे पूछेंगे। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर आपसे ये दरख्वास्त करेंगे आयशा के लिए, जो ना बोल सकती है ना चल सकती है, और कुछ कॉलर्स ने उनकी मदद का ऐलान भी किया है, तो आपसे भी हमारी ये अपील है, जितनी मुमकिन हो सकता है दिल खोल कर आयशा की मदद कीजिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और कॉलर्स भी शामिल हो रहे हैं हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान के शो में, और जो उनके मसाइल हैं ख़ास तौर पर रोज़े को लेकर, अगर उनकी सेहत ख़राब है या उनको कोई डर भी है कि ख़राब हो सकती है, तो वो कॉल कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। एक सवाल रह गया था, बिल्कुल, मुजम्मिल का सवाल था डॉक्टर फैसल आपके लिए, कि वो रोज़ा इस वजह से नहीं रख सकते कि उन्हें प्यास इतनी लगती है और घबराहट से उनके हाथों पाँव से पसीने आते हैं, तो क्या रोज़ा रखने के लिए उनकी कोई सहरी में डाइट बढ़ा देनी चाहिए, या क्या खाना चाहिए? कह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-3 घंटे पानी के बगैर रह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि वो डायबिटिक पेशेंट भी हो,
क्योंकि जिनको शुगर होती है उनको भी प्यास बर्दाश्त नहीं होती और उनको पसीने वगैरह भी आ सकते हैं, तो उसको ज़रूर चेक करा लें अगर अभी तक उन्होंने चेक नहीं कराया है। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है और सिर्फ ये मसला है कि प्यास शिद्दत से लगती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि जितने भी बल्कि अभी तक हमारे कॉलर्स आए हैं जिनका ब्लड प्रेशर का भी था कि लो ब्लड प्रेशर का इशू था या थकावट थी या जो भी था, तो वो अपनी खुराक में रमज़ान के दौरान शिकंजबीन का इस्तेमाल ज़रूर रखें। ओके, सहरी और अफ्तारी दोनों में ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना कि अफ्तार में लोग नहीं, शिकंजबीन देखिए नींबू पानी यूज़ करें। हाँ, नींबू पानी, क्योंकि उसमें नींबू भी है, उसमें आपका नमक भी है, उसमें आपकी चीनी भी है, तो आपकी जो उनसी डिहाइड्रेशन है वो नहीं होती, प्लस कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो बराबर रहता है। तो या ORS पी सकते हैं अगर उनको ऐसा कोई ज़्यादा शिद्दत का मसला है, तो ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल शिकंजबीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा उनको ये चाहिए जिनको पसीना ज़्यादा आता है और वो आता है कि वो इस तरह से करें कि सौंफ का पानी इलायची के साथ, वो अगर सिर्फ आधा कप, मैं गिलास की भी नहीं बात कर रहा, अगर सिर्फ आधा कप भी वो पी लेते हैं तो उससे उनकी जो घबराहट है वो भी ठीक हो जाएगी, उनका पसीना आना भी बेहतर हो जाएगा, प्यास की शिद्दत भी कम हो जाएगी। सौंफ और इलायची का कहवा? जी बिल्कुल, सौंफ का और छोटी इलायची का कहवा। प्लस ये कि जिन लोगों को ऐसा शिद्दत महसूस होता है कि इफ्तारी के बाद या सहरी के बाद उनको बदहज़मी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है, गैसेस होती हैं या हार्ट का कोई इशू हो जाता है, कोई ऐसा होता है, तो वो जो बड़ी इलायची आती है जो हांडी में डलती है, उसके सिर्फ 3 दाने अंदर का जो दाना है, यस, छोटे वाले, बड़ी इलायची के अंदर के दाने, 3 दाने वो चबा लें तो उनको किसी किस्म का भी कोई गैसेस, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी तकलीफ नहीं वो होगी। चबाए कौन? उसका तो टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा नहीं होता, सही कह रहे हैं। उसके बाद छोटी इलायची खा लें। नहीं, उसका तोड़ है। हाँ, उसका तोड़ है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर रखें और अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करें तो इंशाल्लाह ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। ये जो रूहानी तौर पर बूस्ट करना मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सईदी साहब, क्योंकि लोग इस खौफ से भी रोज़ा नहीं रखते, हो 15 घंटे है, प्यास लगेगी। इसमें ना असल में 2 चीज़ें हैं, एक जिस्म है, एक रूह है। हम जिस्म के तकाज़े तो पूरे करते रहते हैं, रूह के तकाज़े पूरे नहीं करते। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर किसी के घर में 2 क्यारियाँ हों, एक फूलों की और एक कांटों की, और कांटों वाली जो क्यारी है उसे वो पानी देता रहे और फूलों वाली क्यारी को नज़रअंदाज कर दे, तो झाड़ियाँ जवान हो जाएंगी और फूल जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे साथ भी यही हुआ है। हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारी रूह की क्यारी जो है वो बिल्कुल जल चुकी होती है और जिस्म की ख्वाहिशात की झाड़ियाँ जवान हो चुकी होती हैं, तो फिर उसको एक यानी फ्रीक्वेंसी पर लाना, रूह को 15 घंटे फिर भूखा प्यासा रहना फिर मुश्किल लगता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी रूह को साथ साथ ग़िज़ा देते रहा करें ताकि वो ज़िंदा रहे। और वो ग़िज़ा कैसे देते रहे? वो ग़िज़ा उसका एक पूरा पैकेज है जो अल्लाह ताला ने दिया है, इससे बेहतर पैकेज कोई नहीं है। सुबह उठते हैं तो दुआ से उठते हैं आप, और सोते हैं तो अल्लाह का जिक्र करके सोते हैं। और रोज़े में हिम्मत कैसे पकड़े? जो रोज़े में वजीफ़ा कोई कुछ भी पढ़ते रहे, क्या पढ़ें? वजीफ़ा ये हो सकता है या कवियो या कदीरो पढ़े, कुव्वत और कुदरत का ये काम है। पहले या कवियो या कदीरो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े तो आएगी कुव्वत, अल्लाह ने देनी है। और ये पढ़ते रहे और पढ़ते रहे और हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम खुद इनको ज़्यादा तजर्बा है, हमारे साथ एक कुलीग होते थे तो उनको जब बुखार होता था तो वो कांपना शुरू कर देते थे, हालांकि उनका कद जो है वो मुझसे भी 2 फीट जो है वो ज़्यादा था उनका, लेकिन इसके बावजूद वो कांप रहे होते थे। तो कुछ लोग जो होते हैं कुछ चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं। हाँ, तो जो ऐसा कर लेते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जो अशरफुल मखलूक़ात है तो उसे अशरफुल मखलूक़ात ही रहना चाहिए, किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसने अपने ऊपर सवार करना है तो वो खशियत इलाही को सवार करे, क्या बात है, एहसास को सवार करे, ज़मीर को अपने को ज़िंदा करे। ये वो चीज़ें हैं जो सवार करने वाली हैं। और जब ये वो सवार करेगा तो फिर ये भूख, प्यास, डर, खौफ, ये सारी चीज़ें फिर वो निकल जाएंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
डॉक्टर साहब कोई होते हैं ऐसे सिम्टम्स अगर देखिए मेडिकल साइंस में तो ऐसा मैदे का डायरेक्ट लिंक टू नक्सीर का फूड मतलब खून आना और इस तरह का मामला तो एज सच नहीं है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो डॉक्टर साहब ने भी जैसे जिक्र किया कि ब्लड प्रेशर उनका कोई ना कहीं हाई रह रहा होगा, और मेरा ख्याल है कि ब्लड प्रेशर पे ज़रा लाजमी देखें। एक तो ये बड़ी कॉमन कॉज है क्योंकि वो बता रही थी कि विंटर्स में भी उनको रहा है इस तरह। जहाँ तक मैदे का प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया कुछ, तो मैं इसमें इतना ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा रोज़े को मतलब एक भूख समझ के और एट द एंड ऑफ द डे जब माशाल्लाह हम सब कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उस वक़्त हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। इस पे एकदम हम पकौड़े समोसे और तली हुई चीज़ें सब कुछ बहुत सारा खा लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो ये होता है कि ओवरनाइट फिर आपने लेटना है और उसके बाद फिर एसिडिटी प्रोड्यूस होती रहती है एंड देन यू फील ऑल द डे कि जी मुझे एसिडिटी रह रही है डॉक्टर साहब, मुझे तज़ाबियत रह रही है। तो मेरा ख्याल है जो इफ्तार वाली डाइट है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप मतलब उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करें, उसमें फ्रूट्स भी ऐड करें और कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें जो हैं वो कम से कम खाएं। यस, तो मेरा ख्याल है तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट वैसे ही आ जाएगी इंशाल्लाह। सईदी साहब आप जवाब दे सकेंगे? जी, एक तो ये है कि तयम्मुम तयम्मुम तो बंदा गुस्ल भी फ़र्ज़ हो तो तयम्मुम कर सकता है और तयम्मुम करने के बाद वो नमाज भी पढ़ सकता है। लेकिन वो शायद ये कह रहे थे कि मैं ज़्यादातर नापाकी की हालत में रहता हूं नहीं, क्योंकि इस्तिंजा भी नहीं कर सकते वो। देखें ना, ये इस किस्म के मसाइल आते हैं, अगर आते हैं तयम्मुम कर ले और हर नमाज के लिए तयम्मुम कर ले, जितना उसके लिए मुमकिन है पाकीज़गी वो करे और उसके बाद तयम्मुम करे और उसके बाद पूरी तसल्ली के साथ वो नमाज भी पढ़ सकता है, वो तिलावत भी कर सकता है। फिर अगली नमाज आए तो फिर नए सिरे से कर ले ताकि वो नमाज़ों के साथ भी लिंक रहेगा और अपने उसके ऊपर जो मुसलसल एक कैफियत आ रही है उससे वो बाहर निकल जाएगा। और जब तयम्मुम कर ले तो वो अपने आप को पाक महसूस करे। शरीयत ने रुखसत दी है तो अल्लाह अपनी दी हुई रुखसतों से खुश होता है जब बंदा उसको इस्तेमाल करता है। और नमाज और कुरान पाक दोनों पढ़ सकते हैं। तो कुरान पाक वो कह रहे थे मैं हाथ नहीं लगा सकता। पढ़ सकते ठीक है। अच्छा, दूसरा था नमाज तरावी और रोज़े का क्या ताल्लुक़ है। देखिए, दो बशारतें हैं। जो ईमान और एहतिसाब की हालत में रोज़ा रखता है उसके भी पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। जो नमाज और एहतिसाब की हालत में क़याम करता है उसके भी पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा अलल वुजूब है। इसकी कई जिहतें हो सकती हैं। सबसे बड़ी जिहत तो ये है कि कुरान करीम की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया है तरावी, नंबर एक। दूसरा ये कि रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दोनों ने शफ़ात करनी है और इनकी शफ़ात अल्लाह की बारगाह में कबूल की जानी है। तो अगर आपने एक काम किया और दूसरा ना किया तो कुरान का रमज़ान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और कुरान इसलिए नहीं उतरा कि आप इसको तोते की तरह जो है वो पढ़ते चले जाएं, ये फ़हम के लिए उतरा है। या फिर अलमारियों में संभाल के रख दे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिन को रोज़ा रखें और रात को क़याम करें। और ये तो मोहतरम डॉक्टर साहिबान बेहतर बता सकते हैं कि जो रोज़ा रखने के बाद जब आप इफ्तारी करते हैं और खा पी लेते हैं उसके बाद तरावी पढ़ना कितना मुफीद है मेडिकली, ये आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इनका आपस में रब्ता है, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उसका अपना सवाब है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर फैसल, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाह रही थी कि ये जो लोग होते हैं जो बाहर धूप पर मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, वो लोग रोज़े के साथ भी होते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर हैं जो वो इख्तियार कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम वो उस सूरत हाल में भी सुकून में रहें रोज़े की हालत? तबीयत से बच देखिए, गर्मियों की जोंसियत हमें सबसे ज़्यादा लगती है वो हमारे ये गुद्दी का जो हिस्सा है, ठीक है। इस जगह को गीले कपड़े से ढक के रखना चाहिए, सबसे अहम एहतियात ये। सर का ऊपर वाला हिस्सा, सर का ऊपर का, या जैसे वो रुमाल गीला करके या जो छोटा टॉवल होता है, ट्रैवलिंग टॉवल जो होता है उसको गीला करके, तो सर से लेकिन गुद्दी का जो हिस्सा है, ये गर्दन की जो बैक है, इसको ज़रूर कवर रखना है। इसको कवर रखेंगे तो बहुत हद तक इंशाल्लाह वो हीट स्ट्रोक से, सन स्ट्रोक से और गर्मी की शिद्दत से वो बच जाएंगे इंशाल्लाह। और
वो ख़वातीन जो जिनको स्टोव्स पे चूल्हों पे खड़ा होकर काम करना पड़ता है वो भी यही कर सकती हैं, वो भी ऐसा कर सकती हैं, और उनको भी इसमें कोई ममानियत नहीं है। तब उनका बेहतर ये होगा कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद किचन से बाहर ज़रूर रहें, तब लगातार 20 मिनट से ज़्यादा वो चूल्हे के आगे खड़े ना हो। अगर कोई चीज़ फ्राई भी करनी है तो उसको पोर्शंस में कर लें, एक वक्त में फ्राई कर लें, एक वक्त में कोई और चीज़ पका लें, तो एक खट्टा जो उनसा है वो 20 मिनट से ज़्यादा चूल्हे के आगे खड़े ना हो, क्योंकि मौसम की शिद्दत ऐसी है और किचन में ना पंखा चलाया जा सकता है, ना कोई ऐसी चीज़ होती है। तो ये छोटी सी एहतियात कर लेंगी तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा रोज़ेदार के लिए आप क्या टिप्स देंगे? अच्छा, एक चीज़ में ख्याल है हम सब ऐड करनी चाहिए, क्या निकाल देनी चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। टोटली चेंज करना चाहिए। इसमें मुरगन ग़िज़ाएँ उनको कम कर देना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स जो उनसे उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ हम सब भूल रहे हैं, एक कॉलर थे जिनके घुटनों में और उसमें दर्द होता था नमाज के वक्त। हाँ जी, जेल है ना। हाँ, तो उनके लिए मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर उनको चेक करा लें, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। अगर यूरिक एसिड के मसले की वजह से उनको है तो आम जो हमारा आलू होता है इसको छिलके समेत अच्छी तरह धो के और इसको उबाल लें, और इसका पानी जो उनसे है वो सहरी में भी पी लें और इफ्तारी में भी पी लें निहार मुँह, तो उससे इनके जो उनसे है दर्दों में काफ़ी आसानी हो जाएगी। सही सही। लेकिन यूरिक एसिड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हर रमज़ान ऐसे ही होता है और 15वें रोज़े के बाद ये फिर मेरा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हाँ, उसमें हो सकता है कोई वैसे जैसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हो सकता है कि हो सकता है वो बाकी दिनों में नमाज ना पढ़ते हो तो रोज़ नमाज शुरू करते हो। अच्छा जमील साहब, ये बदगुमानी हो जाएगी, है ना? मैं माजरत चाहता हूँ उनसे, लेकिन वाकई हाँ, यस, ये तो इसलिए हो सकता है कि उनको जो उनसे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे बदन में अकड़ाव पैदा करते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो शिकंजबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, या नमक और चीनी का पानी मिक्स करके वो पी सकते हैं। बिल्कुल, उससे उनको बेहतरी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे कि रोज़े के साथ आपको सेहतमंद रहना है तो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए खाने पीने में और क्या हैं जो ऐड कर लेनी चाहिए? अच्छा, इस पे अब हम मेरा ख्याल एंड पे जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल वही चीज़ें बताऊंगा दोबारा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो रोज़े में है कि वो ये नहीं सोचना कि भाई हम 15 घंटे का फास्ट है तो एट द एंड ऑफ द डे जो है हम उसकी सारी की सारी ओवर ईटिंग कर दें। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने रोज़े के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेके आने हैं, आपने फैट्स का भी इस्तेमाल करना है, आपने प्रोटीन्स को भी लेना है, आपने वाइटामिन को भी लेना है। तो इन अदर वर्ड्स आप यानी फ्रूट्स को भी लेके आएंगे, वेजिटेबल्स को भी लाएंगे, आपने सारी चीज़ें खानी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि रोज़ा जो है वो सबसे अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत बख्शी है जिस पे हम ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें जैसे लिपिड्स टूटना शुरू हो जाती हैं, आपका वेट लूज़ होता है, आप मतलब हेल्दी चीज़ों की तरफ जाते हैं, मतलब शुगर आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके दिल के अमराज कम हो जाते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो चीज़ें। तो वही बात है कि आपने जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है वो अपने इफ्तार पे करना है, और सहर पे जैसे मौलाना साहब ने भी बताया कि सहर पे ज़रूर खाएं। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि रात का खाना बस दबा के खा लिया जाता है, उसके बाद उठना नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना। सहर के करीब बिल्कुल आप खाएं, और इफ्तार पे जो आप खा रहे हैं उस पे आप स्मॉल गैप्स में खाएं, एकदम बहुत ज़्यादा। आप बात करें कि थोड़ी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें। आपको पता है फ्रूट्स तो अब हर किसी की पहुँच में ही नहीं है, जितनी महंगाई हो गई है, और ख़ासतौर पर रमज़ान में ये अल्लाह की नेमतें हैं और इनके फ़वाइद होते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें इफ्तार में लेते हैं और वही हमसे दूर हो गई। अच्छा, मैं अब चूँकि क्लोजिंग का वक्त बिल्कुल करीब है, मैं अब अपने उस पहले सवाल की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगा। कुछ लोग ये ना सोच रहे हो कि मैंने क्यों मेडिकल साइंस से ये सवाल पूछा कि 15 घंटे भूखा रहने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। तो आपने जो कुछ रिसर्चेस बताई, इसी तरह कैलिफोर्निया की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने नमाज पर भी रिसर्च की और रोज़े पर भी रिसर्च की थी। यू नो बेटर, मैं ज़्यादा सही से कोट भी नहीं कर सकता। नमाज के लिए फिर उन्होंने जो दिल के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं वो मुसलमान नहीं भी हैं, तो उनको जो एक्शंस बताए गए कि आपने ये करने हैं वो पूरी नमाज है, वो पूरी नमाज है कि आपने सजदा करना है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगी। और सेम गोज़ फॉर फास्टिंग कि आपकी साल फिर वो कुछ लोग जो डायबिटिक पेशेंट्स थे और कुछ लोग जो शुगर के थे और ब्लड प्रेशर के भी थे, उनको रिकमेंड किया गया कि आपने महीने में 2 दिन 15 घंटे या 20 घंटे के दरमियान, 15 से 20 घंटे के दरमियान भूखा रहना है। ठीक है, तो ये उनकी रिसर्च
सही साबित हुई, जी, सच बिल्कुल, साबित, बिल्कुल। और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ये एक इनाम नेमत है कि मैं पूरा वही महीना बता रहा हूँ मान कि लिया। बस हम हर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, दिल के अमराज, जो ब्लड प्रेशर, ये सारे हम उन सबको क्या कह रहे होते हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और शुगर की रिस्ट्रिक्शंस करें, तो ये एक नेमत के तौर पे हमारे पास बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। ऑटोमेटिकली थिंग्स एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ी नेमत है ये महीना, और दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हम इस नेमत को अपने अंदर समेट सकते हैं और अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं रोज़े के ज़रिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद अहमद सईदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फैसल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, लेकिन जाने से पहले आयशा के लिए एक बार फिर हम आपसे अपील करेंगे कि इस छोटी मासूम बच्ची जो आपकी मदद की मुंतज़िर है, बहुत गरीब हैं उसके वालिदैन, उसकी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं उसके वालिद, और ये बच्ची जिसका ख़र्चा है 25,000 तकरीबन महीना उसकी दवाइयाँ, उसकी खुराक का, तो आपकी मदद जो है वो इस बच्ची को ठीक कर सकती है, कम से कम इसकी जो सांसें हैं, इसके वालिदैन का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। तो दिल खोल कर मदद कीजिए, आयशा की सवाब भी है और ये महीना भी ऐसा है। अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मज़ीद कुछ मालूमात आप हमारी टीम से भी ले सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज भी और कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट नंबर भी है, ये समझद अली साहब का डायरेक्ट नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, अकाउंट नंबर भी चल रहा है। तो आयशा के लिए आप आयशा की ज़रूर मदद कीजिए, और जाते जाते आपसे इजाज़त लेंगे और मरियम से हम एक कलाम से मरियम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मरियम से सुनेंगे, और आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, इंशाअल्लाह